Good morning, student of class 8. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter, chapter number 4, Basic of Programming. Okay, chapter number 4, Basic of Programming. As all of you know that the first term exam is coming soon, and we have already got the first term examination syllabus. So now take a look about the first term examination syllabus. Here you can see in the first term examination the first 4 chapters which are included in the first term examination. Chapter number 1 is operating system, chapter number 2 spreadsheet and function and charts, chapter number 3 algorithm and flowchart, chapter number 4 basic of programming. In my previous videos I already have discussed about the first 3 chapters. Today I am going to discuss about the chapter number 4 basic of programming. Okay, and as all of you know that the first term exam is mainly based on MCQ. Okay, so all of you should read the chapter very carefully. The MCQ question will come from inside the topic or from exercise the topic, but all of you should read the chapter very carefully. Okay, if you read the chapter very carefully, then you will able to answer each and every question in the examination. Okay, I hope that all of you understand. So let's start today's discussion. Here you can see the content page of this chapter. First of all, we need to know needs and features of a program, steps for writing a program, efficiency of a program, IO means input and output screen design. Okay, and last is bugs and debugging. Today I am discuss about the first 5 topics in this video. Now move on to the topic. First of all, we need to know what is a program. We all know that a program is a set of instruction for the computer to perform a specific task. That means when we need to perform any specific task in the computer, we need a program. Okay, that means हम लोगों को जब भी कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना होगा, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम का हेल्प लेते हैं. तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ ए इंस्ट्रक्शन. ओके, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ ए इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर to perform a task, specific task. Okay, so next is need and features of a program. Need and features of a program. A computer is a device. Okay, a computer is a device that gives out information from the raw data according to the instruction provided. That means we always provide the computer a raw data. Okay, a raw data, and it is very important to give the correct instruction using a program. That means हम लोग जब भी कोई भी रॉ डेटा हो हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करेंगे वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए. ओके, सो नंबर 1 पॉइंट इज़ ए प्रोग्राम शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट. दैट मीन्स जो प्रोग्राम होना चाहिए वो एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि हम लोग अंडरस्टैंड भी कर सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके उसका. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ ए प्रोग्राम शुड बी ईजिली रीडेबल. इट इज़ शुड रिटन स्ट्रक्चरली मीन्स जो एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीज़ हम लोग करने से पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. उस स्ट्रक्चर के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोग्राम होगा उसको लिखेंगे. नेक्स्ट इज़ ए प्रोग्राम शुड बी एफिशिएंट एंड इट शुड कंज्यूम लेस मेमोरी एंड टाइम. दैट मीन्स जो हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे उसमें लेस मेमोरी, जो मेमोरी यूज़ होगा वो कम भी होना चाहिए और टाइम जो है वो भी कंज्यूम कम करना चाहिए. ओके, ए प्रोग्राम next is a program should have a generalized nature. It should not be depend not on work with only a fixed set of data. That means जो हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो केवल फिक्स्ड ऑफ डेटा के ऊपर ही बेस नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज इट शुड बी ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आइडियली द प्रोग्राम शुड वर्क ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स हम लोग जो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करे, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट इज़ ए प्रोग्राम शुड बी ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सब प्रोग्राम्स. दिस सब प्रोग्राम शुड बी एबल टू वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ द एनी अदर सब प्रोग्राम. दैट मीन्स हम लोग जब कोई प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. उस स्ट्रक्चर फॉलो करने से क्या होगा, हम लोग जो प्रोग्राम होगा वो उस प्रोग्राम को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देंगे, तो कि जब प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम रन करने में आसानी होगा और डिबगिंग के में भी आसानी हो सकता है. ओके, ए प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट अपग्रेडेशन मे बी डन ईजिली. दैट मीन्स जो हम लोग अपग्रेड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम लोग अपग्रेड करते हैं तो उसमें अभी आसानी होगा. ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8 इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी सिंपल. ओके, डॉक्यूमेंटेशन एंड
explanatory remarks should be added wherever required in the for better understanding the logic. That means हम लोग जो भी प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो सिंपल होना चाहिए, ओके, ताकि उसको एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो, ओके. नेक्स्ट इज some programming language like Java are case sensitive, thus proper naming convention must be followed such as language. that means जो हम लोग बाद में जाके प्रोग्राम सीखेंगे जावा C++, उसमें से जावा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ओके. नेक्स्ट होता है मिनिमाइजिंग गो टू कीवर्ड, ओके. गो टू कीवर्ड इज दैट हेल्प टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू अनदर पार्ट अनकंडीशनली. दैट मीन्स जो गो टू स्टेटमेंट होगा, गो टू स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है, उससे क्या होता है जो प्रोग्राम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं उस प्रोग्राम का जो कंट्रोल पार्ट है हम लोग आसानी से एक दूसरे पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके. द यूजेज ऑफ गो टू कीवर्ड इज़ नॉट रिकमेंडेड एज द सिम्बलाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ओके. इसको गो टू स्टेटमेंट को, गो टू कीवर्ड को हम लोग रिकमेंड नहीं करते जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो, ओके. नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, ओके. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोग्रामर नीड्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम फास्ट. दैट मीन हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम लिखेंगे तो उसको एनालाइज करना होगा फास्ट हम लोगों को, ओके. दिस मे बी डन बाय रिपीटेडली स्टार्टिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ सैम्पल्स एंड इंटरव्यूइंग द पर्सन हु इज़ गोइंग टू यूज़ द प्रोग्राम, ओके. नेक्स्ट इज आफ्टर द एनालाइज द प्रोग्राम नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड to understand it better. The programmer should have a clear idea of the output it is required. The input that are available in the limitation checks under which is processing has to take place, okay. Next is after this the a proper algorithm should be selected to solve the program. We all know that the all programs has a algorithm, okay. So we need to write an algorithm. So a proper algorithm should be selected for solve the program. A problem can be solved in number of methods. After considering the all methods, the simplest algorithm give the most accurate result in the last amount of the time should be selected. That means जो हम लोग एल्गोरिदम को हम लोग लिखेंगे उसको क्या करना होगा, जो सिंपलेस्ट वे है, जो सिंपल एल्गोरिदम है उसी को हम लोग करेंगे कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने के समय, ओके. नेक्स्ट इज now the program should be written and implement the algorithm desired platform desired programming language. that means लास्ट जो प्रोसेस होगा वो इम्प्लीमेंट करने के लिए होगा द एल्गोरिथम डिज़ायर प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म में होगा, और डिज़ायर प्रोग्राम कौन से लैंग्वेज में होगा, ओके. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम. फर्स्ट थिंग इज डिक्रीजिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, ओके. डिक्रीजिंग द एग्जीक्यूशन टाइम. फर्स्ट पॉइंट इज a program should generate the correct result, okay. We all know that when we write a program it is generate to show the correct result, okay. Once this has been achieved, the emphasis should be increase its efficiency. So this can be done by decreasing the time required execution of as well as execution memory requirement, okay. that means हम लोग को दो चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम कम ले और मेमोरी भी कम ले, ओके. सो फर्स्ट पॉइंट इज डिक्रीजिंग द एग्जीक्यूशन टाइम. select the proper operator while using arithmetic expression. An exponent operators requires more time than the multiplication operators. Similarly, multiplication operators requires more time than a addition operator. That means हम लोगों को क्या करना होगा कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कौन सा कम टाइम लेगा, कौन सा सही होगा, किससे हम लोग आसानी से प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सेट करना होगा, ओके. नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ ऑपरेटर शुड बी मिनिमाइज्ड व्हेन यूजिंग द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज़ if some part of an expression is repeatedly used, then it should be stored in a variable and used whenever required. That means हम लोग तो बहुत सारा वेरिएबल हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के टाइम, तो उसको स्टोर भी करना होगा, ओके. वन शुड मिनिमाइज फॉर्मेटेड आउटपुट इफ़ इट इज़ नॉट एसेंशियल. दैट मीन्स जब हम लोगों को लगेगा कि जो आउटपुट है वो एसेंशियल नहीं है तो उसको हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं.
function and procedures must be used whenever possible. Next is in case the nested loop. We all know that what is a loop. Loop is a repeated when we want to repeat a program, we use the loop command. Okay, so in case a nested loop, the outer loop should have lesser number in iteration than the inner loop. Next is the number loops should be minimized if possible. The different loops may be combined into a single loop. Okay, that means इसको ये important है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है उसको हम लोग कॉम्बाइन करके एक सिंगल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मिनिमाइज द नंबर ऑफ इरिटेशन व्हेन ए सिंगल लूप इफ़ मैथमेटिकल प्रूफ्स सपोर्ट इट. ओके, दैट मीन्स जो हम लोग जब हम लोगों का जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगा, जो प्रोसेस होगा, वो अगर सपोर्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज द नंबर विद इन ए सिंगल लूप के अंदर ले जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग द मेमोरी ऑफ रिक्वायरमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज दी शॉर्टेस्ट एल्गोरिदम शुड बी सिलेक्टेड. मैंने पहले ही बोला था कि शॉर्ट जो एल्गोरिदम होगा उसको सिलेक्ट करना होगा. दी नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी मिनिमाइज्ड. दी इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज फिनिश्ड इट मे बी रिड्यूस्ड रैदर देन द टेकिंग ए फ्रेश वेरिएबल. दैट मीन्स जो हम लोगों ने पहले ही वेरिएबल लिया हुआ है उसको ही हम लोगों को रिड्यूस करना होगा. ओके, फ्रेश वेरिएबल ना लेके. नेक्स्ट इज वेरिएबल आर स्टोर सम constant to display during the output should be avoided. One may also select a particular data type or store data in required lesser number of bytes. So these are the simple points to be followed to when we write a program to decreasing the memory requirement. Okay, next point is IO screen design. That means input and output design. इनपुट आउटपुट स्क्रीन डिज़ाइन का मतलब होता है कि व्हेन वी वांट टू राइट ए प्रोग्राम वी नीड टू फोकस ऑन द स्क्रीन for accepting the input and displaying the output must be friendly to the user. Okay, that means हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे वो उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट होना चाहिए और डिस्प्लेइंग द आउटपुट ये बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए यूज़र के लिए. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ the message should be clearly given to the user starting the kind of data needs to be entered and also arrange the such of data is applicable. That means हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो मैसेज प्रोग्राम जो आउटपुट रिजल्ट देगा, जो इनपुट हम लोग को करना होगा, वो जो मैसेज होता है वो यूज़र फ्रेंडली हो. ओके, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स द ऑप्शन शुड बी गिवन टू द यूज़र री एंटर डेटा. दैट मीन्स जब भी कोई भी प्रोग्राम में ज़रूरत होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोग्राम होगा वो अगर कोई भी न्यू डेटा को एंटर करने के लिए बोलेगा वो होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम में. ओके, नेक्स्ट इज़ द स्क्रीन वेयर द इनपुट इज़ गिवन मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली. जो स्क्रीन होगा, जो इनपुट स्क्रीन हो सकता है, आउटपुट स्क्रीन हो सकता है, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ताकि सबको समझ में आए. ओके, नेक्स्ट इज़ आउटपुट स्क्रीन. The exact value of the processing should be displayed along with the proper message. That means जो proper message जो value होगा, जो output होता है वो एकदम अच्छी तरह से मैसेज के ज़रिए दिखाना चाहिए ताकि यूज़र को जो प्रोग्राम वो जो प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है उसको समझ में आए. ओके, द आउटपुट शुड बी फॉर्मेटेड प्रॉपरली. Next is if the output crosses one page then it should be made on the half of that user may can see entire output. Okay, in case of a pattern display formatted should be accurate. Okay, in case of a graphical display the coordinates should be accurate. If required the different steps of processing should also be displayed. That means these are the mainly basic things which we need to keep in our mind. Okay, keep in our mind to write any program. So next is bugs and debugging. These are very important. Okay, bugs and debugging. bugs mainly errors. जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, वो प्रोग्राम में कोई अगर गलती हो गया है तो उसको हम लोग bugs बोलेंगे और रेक्टिफाई करने के लिए उसको हम debugging बोलेंगे. ओके, सो bugs mainly refers to the errors in a program. This may cause inaccurate output to be displayed or many even prevent the execution of the program. Okay, that means जो बाग्स होता है वो मैंने पहले ही बोला कि जो हम लोगों ने गलती किया है प्रोग्राम में उसको हम लोग बाग्स बोलेंगे.
ओके फर्स्ट क्या होता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स मतलब क्या होता है, सिंटेक्स हम लोग जो भी कोडिंग लिखेंगे उसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। ओके जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटेक्स बोलेंगे। सो फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर। दिस रिजल्ट व्हेन द ग्रामर of the programming language is not followed. दैट मीन्स रॉन्ग स्पेलिंग। नंबर वन रॉन्ग स्पेलिंग नहीं लिखा जा सकता। यूजिंग वेरिएबल दैट हैव नॉट बीन डिफाइंड। हम लोग जो भी वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल मतलब ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, ओके दिस आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो वेरिएबल अगर हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया प्रोग्राम के पहले तो वो गलत होगा। यूजिंग वेरिएबल दैट हैव बीन इनिशिएटेड बिफोर यूज। ओके जब भी हम लोग कोई वेरिएबल को लेंगे उसको पहले इनिशियलाइज करना होगा। ओके मिसमैचिंग ब्रैकेट भी हम लोग को देना होगा ठीक तरीके से। मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी बोला था कि एक जो अगर हम लोग फुल स्टॉप भी नहीं देंगे तो प्रोग्राम एरर आता है। ओके नेक्स्ट इज सिनेमेटिक एरर। दिस में रिजल्ट द सिचुएशन वेयर द सिंटेक्स माइट बी करेक्ट बट द सेंटेंस एज होल डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट मीन्स जो सिंटेक्स हम लोगों ने लिखा है वो तो ठीक होगा लेकिन कोई मीनिंग उससे नहीं निकल के आता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा है लेकिन उसका जो ग्रामेटिकल है वो मिस्टेक है। उससे क्या होगा कि हम लोग आसानी से समझ नहीं पाते उसका मतलब क्या होगा। ओके सो दीज आर द मेनली syntax error. Next is logical errors. Logical error also very important. Incorrect operators used in the expression. Incorrect operators means plus minus is equal to, these are called operators. Okay incorrect operators used in an expression. That means जो हम लोग कभी भी अगर गलत operators यूज़ कर देंगे तो वो होगा प्रोग्राम एरर आएगा। रॉन्ग एक्सप्रेशन रिटन इन द करेक्ट रूल। दैट मीन्स हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो अगर रॉन्ग हो गया तो भी ये लॉजिकल एरर्स आता है। इनकरेक्ट रिलेशन ऑपरेटर्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हम लोग कोई भी रिलेशन दिखाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में तो फिर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने गलत रिलेशन एस्टेब्लिश किया है तो वो एरर दिखाएगा। ओके एनोनिमस इनिशियलाइजेशन condition and updating the loop control variable. This often result in infinitive loops. Considering only a few while ignoring others data item. Failure in understanding a program. So these are the mainly logical errors. Okay these are the mainly logical errors. Next is runtime errors. Okay when we entered wrong data type. Okay when we enter wrong data type, also where the data type is variable accepting the data and the value entered that user do not match. that means जब हम लोग कोई भी डेटा एंटर करेंगे अगर वो मैच नहीं हुआ तो रन टाइम एरर आता है। ओके नेक्स्ट इज डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। हम लोग को पता है कि हम लोग कोई किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ज़ीरो से अगर किसी ने डिवाइड किया तो एरर आएगा। ओके एवल्यूटिंग द स्क्वायर रूट फॉर ए नेगेटिव नंबर। अगर हम लोगों ने कोई भी, ये मैथमेटिकल मेनली दीज आर द मैथमेटिकल एरर्स। ओके इसीलिए हम लोगों को मैथ में स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग किसी भी प्रोग्राम के लिए मैथ में स्ट्रांग होना चाहिए। एवल्यूटिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से हम लोग कोई भी स्क्वायर रूट को एवल्यूटिंग करेंगे तो गलत होगा। ओके इनकरेक्ट प्लेसमेंट और ऑपरेटर्स ब्रैक इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई भी ब्रैकेट गलती से दूसरी जगह पे दे दे, कोई भी ऑपरेटर्स दूसरी जगह पे दे दे तो फिर ये सब प्रॉब्लम होता है। ओके नेक्स्ट इज डिबगिंग। Debugging mainly identify errors and removing them. Okay identifying errors and removing them. Debugging is a continuous process which should be planned properly. After detecting an error, the error must be corrected and the program should be rerun. That means हम लोग मैंने पहले ही बोला था डिबगिंग क्या है, जो हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर आ गया है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करके उस प्रोग्राम को फिर से दोबारा रन करेंगे, उसको ही क्या बोलेंगे कि डिबगिंग बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ displaying intermediate output. This is most an effective debugging technique that may be used when an error cannot be determined. Then one can place dummy print statement using the values of variables with a message. That means हम लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम एरर का पता नहीं चलता है तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके वी प्लेस ए डमी प्रिंट स्टेटमेंट यूजिंग द वेरिएबल्स और विद द मैसेज। ओके नेक्स्ट इज टेस्टिंग विथ predetermined values.
The program may also be tested with the result that are calculated from before. This helps us to detect some errors in the output. Next is indenting. Indenting is a code also helping the debugging. The nested structure may be useful to find the errors in both the logic and the structure of the program. दैट मीन्स जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही बोला था कोई भी प्रोग्राम एक बहुत सारे स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो बहुत ही यूज़फुल है तो हम लोगों को एरर फाइंड करने में और इन बोथ लॉजिक एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट इज ड्राई रन. ड्राई रन इज़ एन एफिशिएंसी वे टू ट्रेस द फॉलो अप कंट्रोल एज वेल एज द आउटपुट. दैट मीन्स जो हम लोग जैसे फ्लो चार्ट में देखे हैं कि एक फ्लो रहता है कोई भी प्रोग्राम में, ड्राई रन में क्या होता है, ड्राई रन क्या करता है, दो ट्रेस द फ्लो ऑफ द कंट्रोल एज वेल एज द आउटपुट तक वो क्या करता है कि कंट्रोल करता है. ओके, उसको देखता है, उसको मॉनिटरिंग करता है. ओके, स्टेप वाइज one may see the progress of the algorithm in order to solve the program. Errors, mostly logical and control flow errors, may be easily traced without even running the program on the machine. That means इससे क्या होता है कि हम लोग का कोई भी प्रोग्राम रन करने के बाद ही क्या होता है कि हम लोगों को कौन सा एरर है वो पता चलता है. लेकिन ड्राई रन यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग जब कोई प्रोग्राम लिखेंगे तब हम लोग को आसानी से कोई भी एरर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं. ओके, so these are the mainly basic things that all of you know how to write a program. Okay, when you write a program, these things to be kept in your mind. दैट मीन्स हम लोग को ये सब चीज़ें ध्यान में रख के कोई भी एक प्रोग्राम हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो इसको ध्यान में रखना है. ओके, so I hope that all of you understand and also read the chapter very carefully. Okay, this chapter is very very important for further chapters like Java programming and C++ programming. So all of you should read the chapter very carefully. Okay, so I am ending my discussion here. I will continue the chapter in my next video. So till then, take care and goodbye.